India is entering into a biggest IPO mania since 2021, and retail investors do not even realize the bubble is forming. Companies with no profit, weak balance sheet, and zero economic moat are asking for valuation higher than the established giant or the size of the industry itself. But when the music stops, the retail always come in the fast to take the hit. In this video, I like to talk about three signs that IPO bubble is forming and nine steps to check before investing in a good IPO. Here are the three signs that tell me that IPO bubble is forming again. Number one, IPO are getting priced as the unrealistic valuation. Company with 10 crore, 20 crore profit asking for 10,000 to 8,000 crore valuation. This is pure liquidity play. Number two, GMP, grey market premium mania is back. People are chasing grey market like it is a guaranteed profit. History says grey market peaked right before the bubble pop. Number three, oversubscription is not a real demand. Most of the time it is HNI levered money, short-term bidder, flipper, one listed gain reduced, the whole structure collapse. If you see, this is what the data from 2021 by this number are by in crore. So if you see 15 IPO आया था 26 करोड़ का ये हुआ था टिल YTD में मोस्ट देन 11,000 करोड़ तक अभी IPO आ चुका है 28 IPO स्टिल नाउ इन 2025 फ्रेश इशू बहुत लिमिटेड होता है एक्चुअली ऑफर फॉर सेल इज मोस्टली हाईएस्ट नंबर क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक्चुअली सेल ऑफ wanted to sell off his existing stake to the retail investor. So this is how the IPO actually 2021 से IPO का एक boom आया and it's continue for that. Last year was the highest one. अभी तक 2000 but इस बार जो number है, जो volume है, big जो valuation, अभी जो IPO का valuation हो रहा है very significantly high. And most of the company has do not have the good quality fundamental. We'll talk about this later on. Now this is what the total IPO till today YTD अगर देखोगे 111 प्लस आईपीओ आ चुका है एंड यू कैन सी 2 लाख करोड़ ऑलरेडी मार्केट से रेस किया गया है दैट इज वन ऑफ द रियली कंसर्न क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईपीओ फंडामेंटल आर नॉट गुड एंड इट इज बीन सीन एंड यहाँ पर सेबी का कोई भी ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं है सेबी बिलीव दैट द मार्केट विल गोइंग टू सेटल ऑन इट ओन एंड वो करेक्ट हो जाएगा तो सेबी इज नॉट टेलिंग एंड it has given a merchant banker to kind of a advice that you can look at the total valuation आप जो valuation में लेके आ रहे हो but there is no restriction on this तो इंडियन माइक आईपीओ इज लाइक मैटमैन कोई भी आ सकता है अभी रिसेंटली आपको ये पता होगा लेंस कैट का हुआ था उसमें से बहुत सारा वैल्यूएशन है उससे पहले लेंस कैट तो ठीक है तो एवरेज वैल्यूएशन है कंपनी डिसेंट है इज नॉट आई एम टेलिंग यू द कंपनी इज डन ये उससे उसका एक ही प्रॉब्लम था अदर इनकम से कंपनी प्रॉफिटेबल है बट लास्ट 3 इयर्स में द कंपनी वाज इन लॉस सो अदर इनकम से प्रॉफिट दिखा के लॉन्च किया दैट इज ओके बट इससे पहले जो कंपनी आया था इट्स इज लाइक 23x ऑफ 23 24 इवन 22 30 पी प्राइस टू सेल्स वैल्यू में ट्रेड हो रहा था पी इज लाइक 300 टाइम्स 400 टाइम्स इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आईपीओ सो ऐसे कंपनी में अवॉइड इन्वेस्टिंग एंड आई विल शो यू अगर मेरे को दिखाना है एक एक करके मैं दिखा सकता हूँ और नाइका और बाकी स्टॉक्स में दिखा सकता हूँ नन ऑफ देम हैज क्रिएटेड शेयर होल्डर वेल्थ सो फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट यू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन आईपीओ this is the place where most of the promoter makes money retailer hardly makes money that doesn't mean that IPO में multi-bagger नहीं होता है out of 111, then 5, 6 IPO become a multi-bagger. Only 5, 6, and not more than that. Some of them made a decent return, but it's very difficult to identify good quality stock. So the problem is a over valuation. Retailer huge loss हुआ है. तो अभी सब्सक्रिप्शन में आईपीओ जो 2024 में जितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है अराउंड 33x सब्सक्रिप्शन और अभी 23x तक अभी तो रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा एजुकेटेड है बट स्टिल दीज आर द स्टॉक्स यू कैन सी ए डिसेंट ओपनिंग हुआ इसके बाद नीचे आ गया most of the IPO you see that they wanted to repay their debt not for the innovation and expansion ऐसे these are the red flag I'll talk about in detail
this is the Mamaearth is also another company. These are the company has made पेटीएम के साथ तो थोड़ा सा रेगुलेशन केस है, आपको पता ही है उसके बाद एक नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट रूल अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल आई टेल यू सम 9 to invest in the good quality IPO. I'll show you one, understand the business model. Second thing, red herring prospectus. Now, I don't know how many of you read this, and it's really around 500 page red herring prospectus. Nobody will do analysis इसमें, क्योंकि ये बहुत सारा पढ़ना पड़ता है. Now, पहले क्या था, AI was not so developed. 500 पेज का PDF will not going to read, वो एक लिमिटेशन होता है. तो ये चीज है प्रॉम्प्ट में, और अगर प्रॉम्प्ट भी दे रहा हूँ ना, उतना डिटेल 500 पेज रीड नहीं हो रहा है. बट रिसेंट अब डेवलपमेंट जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हुआ है, यू कैन अपलोड द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड यू कैन ऑल्सो एनालाइज दिस. आई विल शो यू वन प्रॉम्प्ट. नाउ लेट मी गो देयर. सो नाउ दिस इज वन थिंग इज दैट इवैल्यूएट फाइनेंशियल हेल्थ. तो पहली चीज, जैसे रूल जो है फंडामेंटल इट्स एवरग्रीन. सो आज कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, और मे बी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, इवन 100 years down the line, the fundamental will remain same. Revenue growth, every EBITDA growth, net profit growth, cash from operation. These are the things are very important. So evaluate the financial core. Look at the valuation. Now we'll talk about the valuation in detail. Now this अभी तो intrinsic valuation करना बहुत difficult है. Now let's see the multiple. So P, PS, PP, and there are other valuation. Will EV by EBITDA. We'll talk about this. Now, high valuation without profit. This, remember, this is speculative IPO. Financial influences से न्यूज मीडिया एवरीथिंग. अगर आप कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर ये हो सकता है एक्सेप्शनल, जोमेटो में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं था, एक्चुअली इट बिकम अ गुड मल्टीबैगर. बट जोमेटो इज एन एक्सेप्शनल केस, 1 out of 100 स्टॉक्स में से एक हुआ है. ऐसे हर कंपनी में नहीं होता, बट ऑन प्रिंसिपली कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है. Now it's very important to look at the company's industry growing है कि नहीं. हेडफोन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है लास्ट 3 इयर्स में. अगर आप उसका में रेटिंग पॉसिबल, लास्ट 3 इयर्स में कंपनी इज नॉट ग्रोइंग. एक्चुअली द प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू मार्जिन श्रिंक हुआ है. तो अगर रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में श्रिंक हो रहा है, द कंपनी हैज ट्राई टू वेंचर इन द डिफरेंट आई वेयर और वेरेबल वॉचेस, वो सब सेगमेंट में भी परफॉर्म नहीं कर रहे ना, उसका आईपीओ आएगा और ह्यूज हाइप हाइप किया जाएगा. पीपल विल गोइंग टू इन्वेस्ट एंड मेक लॉट ऑफ लॉसेस. सो ऐसे पहले इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करो, कंपनी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है कि नहीं, और उसमें कितना उसके पास कितना मार्केट शेयर है. दो बोट इज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर. बाकी दूसरा सेगमेंट में उतना, उसके बाद जेबीएल है, बहुत सारा कंपनी है. ऐसे कंपनी में जहां इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टैग्नेंट है, or the promoter also sell their stake to get out of into another business, avoid investing in this type of stock. Promoter holding and management quality that I was talking now. Now board में अगर मैं example दे रहा हूँ, उसमें lot of their CEO also left, their big employee are leaving that company. So these are the challenges if you are getting into the hype and investing in this type of company, then you are also, your money is on risk. So now this is an एंकर इन्वेस्टर. क्या होता है, बिग इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं. अभी सुदीप फार्मा के बारे में मैं एक बात करूंगा, उसमें देखना 0.9% बिग इन्वेस्टर इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेज, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग. बट इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. मेनली फंडामेंटल पहले चेक करो, उसके बाद दीज आर द सेकेंड एडिशनल पॉइंट, बट दिस इज नॉट द ओनली पॉइंट. ठीक है. Now, demand indicator. Yeah, this is what I'm qualified buyer is buying. Usually a good signal. QIB is usually a good signal. Now, second thing, ये लास्ट पॉइंट है. नाउ इंस्पेक्टिंग द ग्रे मार्केट में प्रीमियम हो रहा है कि नहीं. नाउ दिस इज वेरी डाइसी. ऐसे कोई स्टडी नहीं है जो प्रीमियम ग्रे मार्केट में है तो उसलिए वो स्टॉक्स ऊपर ही जाएगा, ऐसे कोई स्टडी नहीं है. इट्स अ गुड टू हैव इंडिकेटर, बट यू डोंट 100% रिलेट, क्योंकि ये चीज ना 90% मैंने देखा है इन्वेस्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट करके इन्वेस्ट. ग्रे मार्केट में ओवर सब्सक्रिप्शन है, पॉजिटिव डिमांड है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर दो, और उसके बाद स्टॉक्स आने के बाद धड़प कर नीचे आ जाता है. तो ऐसे ये कोई अभी तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं है. इट्स अ गुड टू हैव, बट ऑल्सो लुक एट द फंडामेंटल. अवॉइड इन्वेस्टिंग, इमोशनल इन्वेस्टिंग. Hype equals to not value.
रिमेम्बर दिस, अगर यूट्यूब में और बाकी चीज में हजार हाइप हो रहा है तो ये वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को खरीदा जा सकता है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन इज नॉट इक्वल्स टू गुड बिजनेस, बिकॉज हाइप इक्वल टू ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जैसे ओला में हाइप हुआ था, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, यस लिस्टिंग प्रॉफिट हुआ था, बट कंपनी इज नॉट प्रॉफिटेबल एंड इट्स नॉट ए गुड बिजनेस एट ऑल। सो दिस इज अनदर थिंग, एंड नाउ इन्फ्लुएंसर प्रमोशन इज नॉट इक्वल टू गुड फंडामेंटल। ये तीन चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा just to follow. Now, let's talk about the valuation. This is very, very important. Now, I have given you from sector point of view. अगर कोई भी सेक्टर में आईपीओ आ रहा है तो पहले से सेक्टर वाइज चॉइस कर लीजिए। पी रेशियो कितना मल्टीपल इन्वेस्ट हो रहा है। नाउ अगर पी में अगर देखोगे कोई भी स्टॉक्स एनीथिंग विच इज पेयर 20 to 40 पी में ट्रेड हो रहा है फार्मास्यूटिकल में, ठीक है कोई बात नहीं। एनीथिंग 45 and 50 above, आई नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट आईपीओ. It's overvalue IPO. Number two, IT sector में you can see over here, this is the P. Banking sector, it's a conservative sector, तो बैंकिंग में PE से ज्यादा रिटर्न ऑन एसेट देखा जाता है, तो फिर भी ठीक है। PE अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 12 to 18 एक्स PE में इट इज गुड एनफ। सो ऑटोमोबाइल यू कैन सी, फार्मा 18 to 25, दिस इज वेरी नाउ। अगर कोई भी हाई टेक ग्रोइंग उसमें जनरली नेगेटिव लॉस होता है, टेक कंपनी में लॉस होता है, तो ये पी जनरली यूज नहीं होता है। लुक एट द पीपीएस रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो। सेल्स का कितना मल्टीपल, पहले बुक वैल्यू डिस्कस कर लेता हूँ ना। बुक वैल्यू बैंकिंग में भी देखा जाता है, एनबीएफसी देखा जाता है, तो इफ यू सी ओवर हियर बुक वैल्यू के मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यू कैन सी। नाउ लेट मी गो टू द ये प्राइस टू सेल्स। नाउ अगर कोई भी टेक्स कंपनी है, अभी जो लेंस कार्ड आया था 10x था, तो 10x इज ऑलमोस्ट ओवर वैल्यूड। बट ये अगर मैं जोमेटो और ये लेट से पेटीएम ये सबसे मैं अगर कंपेयर करूं तो उससे 1/10 1/4 1/5 में अंडर वैल्यू ट्रेड हुआ था, तो इससे फिर भी सही है। नाउ इफ यू लुक एट ओवर हियर, एक इस अराउंड 4 5 to 8 एक्स में ठीक है, उससे ज्यादा सेल से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर वैल्यू है। नाउ लेट्स से ईवी टू एबिटा, दिस इज एक वैल्यूएशन कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू देखा जाता है, तो दिस इज व्हाट यू कैन आल्सो लुक एट नाउ। सो इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट ऑन एन एवरेज इफ यू लुक एट दिस पी रेशियो मल्टीपल मोर देन, अगर जो 1.5 ऑफ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री के कोई भी इंडस्ट्री है उसके 1.5 गुना अगर इंडस्ट्री के ऊपर ले रहा है, चलो ठीक है, उससे ऊपर नहीं है तो मत करो। पीएस रेशियो 2 टाइम ऑफ एवरेज इंडस्ट्री व्हेन यू लुक एट। प्रोमोटर होल्डर अगर लेस देन 50% होल्ड कर रहे हैं, क्विकली दे वांटेड टू सेल ऑफ देयर स्टेक, तुम्हारा ये स्टॉक मैं तुमको बेच के जा रहा हूँ, ऐसे अगर प्रोमोटर स्टेक नहीं है, हेवी इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, नो, डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक। नाउ एक कंपनी अभी रिसेंटली आ रहा है, सुदीप फार्मा। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव सीन, दिस कंपनी इज डूइंग वेल। वैल्यूएशन स्टेज है इंडिया में, जितना भी हो रहा है वैल्यूएशन स्टेज है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं एनालिसिस में दिखाता हूँ। नाउ इफ यू गो एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लो, और एचपी डाब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये आपके पास डाउनलोड आ जाएगा, जुलाई 2025 का है। एक मिनट, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए एंड आई विल गिव यू द प्रॉम्प्ट। एंड इफ आई गो ओवर हियर, लेट्स से आई हैव ऑलरेडी गिवन, ये तो बेसिक प्रॉम्प्ट है। आई कैन सी द ओवरव्यू ऑफ द कंपनी, यू कैन अपलोड दिस, तो ये 500 पेज का होगा इस अराउंड, इफ यू सी ओवर हियर 555 पेज। आई होप आपका भी चैट जीपीटी पे आ जाएगा, तो अप्लाई दिस वन एंड यू कैन सी दिस कंपनी फंडामेंटल फूड न्यूट्रिशन में है। दे आर वन ऑफ द टॉप 7 कंपनी ग्लोबली। दे हैव द लाइसेंस, तो वो जो कैल्शियम को एक एक्चुअली दे क्रिएट ए बेस, कोई भी मान लीजिए दवाई हो रहा है ना, उसका बेस क्रिएट करता है। स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट में है, न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट ब्रांड, कोई भी दवाई के लिए ये चीज चाहिए, एंड देयर आर बिग सप्लायर एज वेल। सो रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू फॉर एक्सपोर्ट इसका 59 to 60% एक्सपोर्ट है। सो इफ यू सी ओवर 60 to 68% रेवेन्यू कम अक्रॉस 2022 to 2024, हाईली एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी। नाउ यूरोप, यूएस, APAC में they are also selling, manufacturing is there, so we said 50%. The problem in the manufacturing, there are concentration to one geographical location, जो गुजरात में है, otherwise this company is fine
if you look at that, there are R&D में है, and you can see their plus almost 100 product तैयार करता है launch. They have their 100 plus product in their capacity, and plus 100 plus country में भी export भी करता है. So this is टेक्निकल टर्म है कुछ, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. आई हैव नो आइडिया इन दिस टेक्निकल, बट मैं फंडामेंटल में जानता हूँ, तो मैं एक चीज में बोल रहा हूँ. टॉप कंपनी कंट्रीब्यूशन एक चीज है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन एक रिस्क है. तो इस टॉप 14 customer contribute 37 to 43% of their revenue. So generally what we look at when investing in a company, so no company single customer should be more than contribute more than 10% of the customer, but top 10 is the main customer base. तो इसमें यूज करो, और यू कैन अपलोड दिस रेड एयरिंग प्रोस्पेक्टस. इसमें सोर्स से इसने ऑलरेडी यू कैन सी इट इज ऑलरेडी फ्रॉम हियर. नाउ you can see over here low single customer dependency, but सिंगल कस्टमर में डिपेंडेंसी है नहीं, बट एक चीज है ना, मार्जिन सही है, कंपनी का मार्जिन एंड पैड मार्जिन सही है. एंड दे हैव रिसेंटली मेड एन एक्विजिशन, न्यूट्रिजन सप्लाई आयरलैंड में एक एक्विजिशन किया है. ईवी बैटरी में अभी एक्सपेंशन हो रहा है कंपनी के बारे में. रिक्स है, ये देखो, हाई रेवेन्यू कंसंट्रेशन इज देयर, वन सेगमेंट से आता है. The pharma nutrition is the only one segment which is around 62 to 83% of the revenue. Now, location located है आपका मैन्युफैक्चरिंग R&D से एक ही सेक्टर में, एक ही जगह पे ये कंसंट्रेशन है. एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन है. अगर कोई लेबर यूनियन चैलेंज, जो गुजरात इज अ फ्रेंडली स्टेट, तो उसमें उतना चैलेंज नहीं है, बट फिर भी अगर कोई लेबर यूनियन कोई भी पॉलिसी हो जाए, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट हो सकता है. जो ग्लोबली जो सप्लायर होता है, जनरली डाइवर्सिफाइड दर मैन्युफैक्चरिंग हब इनटू डिफरेंट लोकेशन. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इमीडिएटली दे कैन शिप, बट दिस इज वन इज द सेकेंड थिंग. हेवीली एक्सपोर्ट, तो दो चीज है, इट विल बी इट इज डिपेंड ऑन एफएक्स करेंसी, फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है. सेकेंड थिंग है आपका ट्रम्प का पॉलिसी है, गवर्नमेंट जियोपॉलिटिकल रिस्क. अदरवाइज एंड अनदर थिंग इज दैट ये जो इंग्रेडिएंट होता है, ये चाइना से लेके प्रोसेस करके एंड यूएस एंड यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट होता है. तो जो स्पेशल की इंग्रेडिएंट है कमिंग फ्रॉम दिस चाइनीज मार्केट, तो इसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये लार्ज है, मैंने ह्यूज है. ये कॉन्सेप्ट सब ऑल एक, नो वन, मतलब देर इज नो कंपनी इज 100% परफेक्ट. दिस आर द वीकनेस, अदरवाइज दिस इज ऑलमोस्ट मोनोपोली. इंडिया का कोई कंपटीशन है नहीं. देर आर ग्लोबली 7 कंपनी है जिसके पास लाइसेंस है, और दिस इज वन ऑफ द कंपनी. अगर मैं इसका लिस्ट होने के बाद, इफ यू हैव अप्लाइड दिस आईपीओ, आई डोंट थिंक यू हैव बीन इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग इन्वेस्टमेंट. इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. यू अगर आप कर सकते हो, वैल्यूएशन इज लिटिल ऑन अ हायर साइड, अदरवाइज कंपनी सही है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव यू दिस फ्रॉम अभी जो बैंड है, तो वो आप दे दो, ये पूरा एनालिसिस आपको करके दे देगा. ठीक है, आपको ये प्राइस बैंड देना है. अब नेट से आपको मिल जाएगा. वंस यू गिव द प्राइस बैंड, it will going to extract every information from your red herring prospectus and create a proper planning for you whether you need to invest in this company or not. आपका कंपनी में मार्जिन कितना है, and you can see over here, you can see after that peer में comparison करेगा, and after the अभी calculation कर रहा है, you can see over here very undervalued in terms of PE ratio, ये सही दिखा रहा है. attractive PB ratio में, PS ratio में deeply undervalued, you can extremely यहाँ पर दिखा रहा है. ठीक है, ईपीएस इज स्ट्रॉन्ग. नाउ दिस इज द सेक्शन. प्रॉफिटेबिलिटी जो consistently good, operating profit good, free cash flow average due to capex expenditure, debt to equity ratio balance है, मैंने point almost negligible, coverage high coverage ratio, margin is excellent, working capital cycle weak and heavy receivable. That I already told you. They are been taking key ingredient from China, and they processing, and then they are sending exporting to US and American and other countries. तो ये इसके लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल इसका चैलेंज रहेगा. ठीक है. नाउ दिस सेक्शन 4, qualitative analysis, you can go through this, and after that you can see this is the red herring prospectus. No, ये आपका रेड फ्लैग है. नो, दिस इज लॉस मेकिंग कंपनी. नो. नाउ प्रोमोटर होल्डिंग लार्ज मीडियम 1 crore ऑफ है. इसमें एक चैलेंज है, इसमें 10% आपका जो भी 900 करोड़ के आसपास हो रहा है, तो 90 करोड़ विल गोइंग टू गो फॉर
योर एक्सपेंशन फॉर कैपेक्स एक्सपेंडिचर के लिए हो रहा है, बट रेस्ट ऑफर फॉर सेल है। तो बट फिर भी प्रोमोटर होल्डिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। नाउ दिस आर द थिंग्स इज फाइन। नाउ ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉम्प्ट। नाउ इफ यू लुक एट दिस प्राइस बैंड, दिस इज इट। नाउ दिस आर द risks are there. Now if you like to invest, final decision, yes, strong buy, even though it's a little on a higher side, but ठीक है, strong buy. You can use this prompt before, and you can see overall score is 90%। का 1.6x में अभी एलोकेशन है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एलोकेशन हो जाए, तो आई डोंट थिंक इट विल बी नॉट गोइंग टू बी अ बैड इन्वेस्टमेंट, बट ठीक है। अगर लिस्ट हो जाए उसके बाद हम लोग एक बार वैल्यूएशन देखेंगे, एंड वी कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी विच इज गुड। नाउ फार्मा सेक्टर इज टू चीज इस कंपनी का प्रॉब्लम है। वन थिंग मैंने बोल दी, जियो पॉलिटिकल, फॉरेन करेंसी, एंड ट्रम्प का डिसीजन के ऊपर। ट्रम्प अभी जो मेरे को लग रहा है इंडिया और यूएस में कोई ट्रेड डील हो जाएगा, तो बाकी तो ठीक है। अदरवाइज दिस इज द इन्वेस्ट। बाकी आगे जो आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे।